Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. And today I'm so excited to talk to all of you because I have an amazing energy today. Today in this video, I'm going to share my journey that what happened with me. That is why I'm here to motivate you, to make you confident, to talk about communication skill. Why am I here? I'm going to share my why did I start learning English language, why, and what is the reason behind that, what is really a reason, and why this time, what kind of reason I have. That is why I cannot stop my journey. Even I can stop making videos, but I cannot stop my learning journey. I cannot stop teaching people. I cannot stop making people aware about their life. Why? What is the reason behind that? I'm going to share my journey, and before that, I haven't talked about my journey. Stay tuned in this video until it ends, because from this video you are going to know about my journey. Without any further ado, let's get into the video. So guys, my journey start just like you. Just when I was child, in class 5th, I was before class 5th I was not aware about anything. In class 5th I was getting everything. I was observing people, that how people are doing, why they are not happy. I had a mindset. I can say that I had that potential. I can say that in class 5th I was not getting anything from my subject that I used to learn in class 5th, like EVS, maths, English. I was not getting anything, but I was observing people. I was learning from the people, that how are they living their life, how is their life. I was observing people. I was looking at the people, that how they are they happy or not. In main thing, in class 5th, when I was in class 5th, that time I just sorry for those people about whom I'm going to talk in this video. So guys, when I was in class 5th, ऐसा नहीं था कि मेरी जर्नी बहुत easy रही है. My journey was not easy, and it will not be very easy. Changing from introvert to extrovert, it is really not easy for any introvert person. First of all, I was very introvert. Even मेरे क्लास में nobody was knowing me that I am also a student of that class. मेरे क्लास में कोई मुझे ये नहीं जानता था कि ये भी इस क्लास की है. Even they were not talking to me. I was not talking to them. मैं भी उनसे बात नहीं करती थी. वे भी मुझसे बात नहीं करते थे, because I was silent all the time. I was silent. Even if I was knowing the answer of the questions, whatever we were giving by the teacher, I was knowing the answer, but because of introvert nature मैं बैठी रह जाती थी. Even in the last of the class मुझे punishment मिलता था. मुझे बहुत सारे पनिशमेंट मिलते थे. दैट बहुत सारे बाय वर्ड्स वर्डिंग्स आई वाज गेटिंग पनिशमेंट एट माय हाउस आल्सो. नॉट ओनली इन स्कूल, आई वाज गेटिंग so many punishment at my home, because I was very introvert. I was not getting, even I can say that मैं लोगों के हिसाब से मैं बहुत सेल्फिश थी उस टाइम पे. जब मैंने आई वॉज इन क्लास 5th, तो पीपल सोचते थे कि इवन including my family members also, they were thinking that she is very selfish, she is not doing anything, she will not be able to do anything, she cannot do anything because she always thinks about herself. मतलब लोगों के द्वारा मुझे ये भी कहा गया, इवन इंक्लूडिंग माई फैमिली मेम्बर्स, दैट यू आर वेरी सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो, हमेशा अपना देखती हो. इवन दैट टाइम आई वॉज नॉट नोइंग एवरीथिंग. चीज़ जो शायद ही आप विश्वास करेंगे, आई वॉज सर्चिंग अबाउट द कोर्स फॉर बिकमिंग सेल्फिश. मुझे बोल बोल के, मैं वैसी नहीं थी, बट लोगों ने बोल बोल के मुझे सेल्फिश होने पे मजबूर कर दिया. इवन मैं कोर्सेज देखती थी कि कैसे मैं उस लोगों के साथ रहना पसंद करती थी जो सच में सेल्फिश थे, क्योंकि मैं सीखना चाहती थी हाउ टू बी अ सेल्फिश पर्सन इन अ लाइफ. आई वॉज थिंकिंग, मतलब मैं सीखना चाहती थी कि सेल्फिश मैं सच में कैसे बन सकूं, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट सेल्फिश. मैं उस टाइम पे वैसा नहीं थी बिल्कुल भी जैसे लोग सोचते थे, बिकॉज आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन. मैं अपने काम से मतलब रखती थी. बिकॉज ऑफ माई नेचर आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. तो इसको लोगों ने गलत समझा कि कभी बात नहीं करती, हमेशा अपने काम से मतलब रखती है, लाइक दैट. तो ये चलती रही ये जर्नी. क्लास 12th तक ये थी. इवन और भी बहुत कुछ है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, बट नॉट इन दिस वीडियो. तो
लोगों ने बोल बोल कर मुझे सेल्फिश बना दिया। आई वॉज नॉट लाइक दैट। तो मैं देखती थी जो मुझे लगता था कि वो सेल्फिश है, तो मैं उन्हीं के साथ में रहना पसंद करती थी, बिकॉज़ मैं सच में होना चाहती थी वैसे। मैं सच में मतलब सच में चेंज हो जाना चाहती थी। मैं सच में सेल्फिश बनना चाहती थी कि वाई पीपल से टू मी दैट यू आर वेरी सेल्फिश नाउ, लेट्स लर्न हाउ टू बी अ सेल्फिश पर्सन इन लाइफ। आई वॉज लर्निंग अबाउट दैट by going to those people who were really selfish। तो ये जर्नी है जो 5th क्लास से स्टार्ट हुई, और 6th 7 8 क्लास में जैसे मतलब आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मैं ना तो एकदम होशियार थी, इंटेलिजेंट नहीं थी, मैं तो ना तो एकदम वीक थी। आई वॉज एन एवरेज। बट वही था कि मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं बोल नहीं पाती थी, बोलती नहीं थी, जानती सब कुछ थी, पता होता था कि आंसर क्या होता था, बट आई वॉज नॉट स्पीकिंग दैट, आई वॉज नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट द आंसर। मैं आंसर पता होने के बावजूद भी क्लास में चुपचाप बैठी रहती थी। आई वॉज लाइक दैट इवन इन क्लास 10th ऑल्सो। क्लास 10th में पीरियड्स आए हुए थे मुझे क्लास में। आई हैड रियली वेरी बैक पेन। I was not able to bear that pain. But because of shy nature, शर्मीले स्वभाव होने के कारण और इंट्रोवर्ट होने के कारण मैं बैठ के रोती रही। बट मैंने टीचर को नहीं बताया कि मैम आई वांट टू गो होम, आई हैव बैक पेन, आई हैव पीरियड्स। I did not tell about that. I was not able to tell about my pain also। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि उस टाइम पे I right now when I remember that moment I feel that how was I and how am I right now। that time एक अपने लिए बोलने के लिए एक वर्ड्स नहीं हुआ करता था, and this time how am I, how can I changed myself। it is very thinkable things you must think। I cannot say that you must think about that, I think about that how can I change myself। उस टाइम पे बहुत दर्द होता था, बट मैं किसी को नहीं खुद रो के सहन कर लेती थी उसको, बट आई वॉज नॉट टेलिंग टू एनी वन अबाउट दैट। मैथ्स का क्लास था, वो मैथ्स की क्लास थी, और टीचर्स थे क्लास में। मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत 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 हो रहा था उस दिन, बट मैम बैठ के आई डोंट नो दैट मैंने वो दर्द कैसे सहा। वो मेमोरी याद है क्लास 10th की, और क्लास 11 12 बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ों ने तोड़ तोड़ के मुझे इतना काबिल बनाया कि नाउ आई एम एबल टू टॉक टू पीपल। तो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, प्लीज़ उसको एकदम मतलब ये मत समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह होगी। जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ रीज़न से होता है। अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट हो, तो अगर आपके साथ में कुछ चीज़ें हो रही, तो आप पॉजिटिव रहे कि वो हो रही है, वो जो भी चीज़ें हो रही है बिकॉज ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ। आपको चेंज करने के लिए ही वो सब हो रही है। क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ, मैं सच में कहना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स आई एम लाइक दिस। अर्लियर आई वॉज नॉट लाइक दिस। मैं क्लास 12th तक बिल्कुल भी एकदम सहमी सी डरी हुई बच्ची हुआ करती थी, जो अपने लिए कुछ भी बोल बिल्कुल नहीं पाती थी। इवन मैं जैसे मेहमान आ जाते थे तो आई वॉज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द रूम। मैं रूम में ही रह जाती थी, छुप के रह जाती थी, बट आई वॉज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम। आई वॉज नॉट टचिंग देयर फीट बिकॉज ऑफ शाय नेचर, बिकॉज ऑफ इंट्रोवर्ट। आई वॉज थिंकिंग दैट अगर कुछ हो गया, गलत हो गया या फिर कुछ भी हो गया, दैन वो मेहमान तो डांटेंगे ही, साथ में जो भी मेरे फैमिली वाले हैं तो वो भी क्या बोलेंगे मुझे। दैट्स वाई आई वॉज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन। बट 12th के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी एज है 24, और 12th के बाद भी बहुत कुछ हुआ है जो चीज़ों ने मुझे तोड़ के रख दिया था। इवन वन टाइम आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड। राइट, एक समय थी जब मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचती थी, बिकॉज एनीथिंग वॉज नॉट हैपनिंग इन माई वे। कुछ भी चीज़ें हैं जो मेरे फेवर में नहीं होता था, अपोजिट होता था, जिससे मुझे हर्ट होता था। सारी चीज़ें होती रहीं, और फिर
धीरे धीरे करके सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि आपको बदलना ही पड़ता है. नाउ that situation changed me, and because of that, those all situations, I am here. And I can say that now I am very confident. I'm fearless girl. I can speak in front of anyone without any hesitation. Whatever wrong happens anywhere, I talk about that. I feel very happy when I share my thoughts, when I help people. मतलब लोगों की मदद करने में और अपने थॉट्स को शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. इवन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, इट इज़ नॉट माई होल जर्नी. सो आई होप दैट इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि वट एवर हैपन्स फॉर गुड. और जो भी आपके साथ में हो रहा है, डोंट टेक दैट वेरी सीरियसली, बिकॉज कुछ रीज़न तो होगा उस चीज़ के होने के पीछे. तो ये सब चीज़ों को शेयर करने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ऐसा कोई किसी ने मुझे कह दिया है. बिकॉज ऑफ दैट आई एम थिंकिंग दैट नाउ मुझे अब एक्शन लेनी चाहिए. You got to learn something from this video. If you got something, so please do subscribe to this channel. And if you don't like this video, I can say that please do not subscribe to this channel. You can like this video if you like. If you don't like, you cannot like. So I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.